Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, IIM IPM इंदौर का एप्टीट्यूड टेस्ट का डेट अनाउंस हो चुका है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर इट इज ऑन 2nd of July. So far no information is out when to fill the form, what will be the exam pattern, उसके बारे में आज तक तो नहीं पता है, ठीक है. बट यू शुड नो दैट व्हाट आर द काइंड ऑफ यू कैन से एग्जामिनेशन पैटर्न वाज देयर इन द लास्ट ईयर क्या पैटर्न था, क्या क्या टॉपिक के ऊपर तैयारी करनी चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए. दैट इज व्हाट द एजेंडा वी हैव फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट IIM IPM का सिलेबस क्या है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है. दैट इज उसका इंग्लिश का सिलेबस, कॉन्ट का सिलेबस, दोनों सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है. देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड वाइल यू प्रिपेयर फॉर कॉन्ट एंड व्हाट यू शुड डू वाइल यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश एंड व्हाट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. दोस्तों, प्रो टैलेंट की तरफ से ऑन एन एवरेज every year so many students get into IIM, NMIMS, Symbiosis, Christ, you can say entrance examination, they clear it, and these are the students who are currently studying in this top कॉलेजेस, ठीक है. सो दोस्तों, जल्द से जल्द प्रो टैलेंट की चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है. ज्वाइन अवर कोर्स, वी हैव अ क्रैश कोर्स अवेलेबल विच इज एन ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड, ठीक है. यू वांट टू ज्वाइन अस, यू कैन वेरी वेल ज्वाइन अस. लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न फर्स्ट, ठीक है. ओ दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेबल. नो, लेट मी एक्सप्लेन दिस. क्या है दोस्तों, 2019 जब कोरोना का काल नहीं था, ठीक है, दैट्स अ प्री कोविड पीरियड. This exam was a computer based exam. You have to appear for a particular center, ठीक है. और वहां पे आपके पास again से 3 सेक्शन होते थे. सेक्शन 1 is of quant, short answer type, 20 questions, ठीक है. सेक्शन 2 quantitative aptitude, once again MCQ based, and verbal ability 40 questions, ठीक है. Each question is of 4 marks, so total 40 into 4 makes it 260 marks. 40 into 4 is 160 marks, ठीक है. And this is 40 into, you can say 4 into 20, that makes it to 80 marks. Each section had a separate sectional time limit. Each section had a separate sectional time limit, ठीक है. And the question for one right answer, the marks would be 4 and negative would be -1 in this 2 MCQ part. There were no negative marking for short answer type, ठीक है. With the arrival of Corona काल, the situation has changed, ठीक है. Now you can say instead of you can say 120 minutes, you have 90 minutes and you have 60 questions. That number has reduced. I believe number this year will possibly go back to 2019 because the scenario is better. Now we are able to manage, you can say, without any kind of problem of the pandemic, ठीक है. However, we must know what is the kind of, you can say, number of question. Quantitative aptitude, short answer type, 10 questions. Quantitative aptitude, MCQ based questions, 20 questions, for which you get 30 minutes individually. Okay, verbal ability, you had 30 questions. For each question 4 marks. For MCQ negative is -1. For non MCQ no negative marking, ठीक है. तो यहाँ से ये समझ में आता है that there are some standard, you can say, constant with the IPMAT. What are the constants? Number 1, it has a sectional time limit. Number 2, the section remains same. Okay, so questions with short answer type where you don't get MCQs, you get blanks, you have to type it with the help of mouse, that remains constant. Whether it is a corona period or not a corona period, that remains constant. So sectional time limit constant, ठीक है. The short answer type or the type of sections remain same, तो उसमें कोई अंतर नहीं है. Which means when you prepare for it, considering previous year का पेपर या उसके पहले का पेपर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, it remains same, ठीक है. That is important. Number 3, the sectional cutoff, ठीक है. So there are sectional cutoffs are there. Let me show it to you. Sectional cutoff, ठीक है. So here when I look at the sectional cutoff, quantitative ability MCQ, there were, you can say, 11 marks. Quantitative ability short answer type 8 marks, and the verbal ability 51 marks, ठीक है. So this is
टोटल यू कैन से ट्राइंग टू टेल अस कि भैया ये जो हमारे नंबर है दैट इज कंसिडरिंग दिस कट ऑफ इज फॉर 2021, ठीक है. सो दिस टेल्स अस कि भैया कुछ स्पेसिफिक कट ऑफ हमें ज़रूरी बन जाते हैं, ठीक है. दिस इज फॉर EWS कैटेगरी. फॉर जनरल कैटेगरी 16 एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे राइट करने थे. 21 विच मीन्स 5 क्वेश्चंस राइट करने हैं. 70 कट ऑफ है, ठीक है. सो दैट मेक्स इट टू सम राउंड यू कैन से ऑन एन एवरेज 17-18 क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं आउट ऑफ 30, ठीक है. दिस इज आउट ऑफ 30, दिस इज आउट ऑफ 30, सॉरी दिस इज आउट ऑफ 20 एंड दिस इज आउट ऑफ 10, ठीक है. सो दिस आर द 2 एरियाज जहाँ पे आपको 50% के आजू बाजू कट ऑफ चाहिए और बाकी एरिया में आपको 50% जितना कट ऑफ नहीं चाहिए. इज दैट कंफर्टेबल? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. नाउ यू कैन से इफ आई लुक एट IIM इंदौर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आर वंडरफुल. दे आर नॉट यू कैन से वेरी बैड, जहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए ऐसा लगे, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है. इट इज कंपेरेबल टू IITs. Yes, you heard it right. It is comparable to any IITs. So look at the average salary packages, ठीक है, which are in 2021, it is some around 23 lakh rupees. ठीक है, it all started with some around 12 lakh. Slowly and slowly it has increased. In just 5-6 years, it has increased to some around 23 lakh rupees. ठीक है, if you talk about highest salary, they are in the range of 40 to 50 lakh rupees. So 100% placement होता है, ठीक है, with a good you can say amount. So that gives us very good benefit कि हम इसके लिए बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें. तो दोस्तों, जब हमें ये मोटिवेशन मिल गया कि ये अच्छा प्लेसमेंट देता है और कट ऑफ बहुत भारी नहीं होता है, ठीक है, विच मीन्स वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट, वी कैन प्रिपेयर ऑन इट इन अ बिग वे, ठीक है. और अगर अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट IP मैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दिस आर द सेक्शंस ऑन विच आई बिलीव यू हैव टू वर्क ऑन, ठीक है. एक सबसे ईजी एरिया है अरिथमेटिक, जो सब लोग तैयारी करते हैं. एल्जिब्रा, numbers, modern maths, geometry and data interpretation. In all, total 6 big areas on which you have to work on. ठीक है. Now कितना weightage कौन से एरिया का होगा, ठीक है, विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. बट हाउएवर इफ यू कैन कंसीडर 40% वेटेज इसका रहेगा, सम अराउंड 10% वेटेज डेटा इंटरप्रिटेशन का रहेगा, सम अराउंड एल्जिब्रा विल बी सम अराउंड 10 to 15% के आजू बाजू रहेगा, ये करीबन 5% के आजू बाजू रहता है, ठीक है. मॉडर्न मैथ्स विल ऑल्सो बी 5% और ये भी करीबन 10% के आजू बाजू वेटेज रहता है, ठीक है. सो अरिथमेटिक कंप्राइजेज ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शंस, मिक्सचर, वर्क एंड टाइम, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, दिस आर दी एरियाज. दोस्तों, क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली नंबर्स का, सो ये नंबर सिस्टम्स के जो पार्ट है वो काफ़ी बेसिक फंडामेंटल रहते हैं. अगर आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है. अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं, ठीक है. दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर. व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट अरिथमेटिक, इन अरिथमेटिक लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. दोस्तों, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस इजी होते हैं, ठीक है, मैनेजेबल होते हैं. हाउएवर लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल. अगर आपका लैंग्वेज में कमांड नहीं है, आप उसको समझ नहीं पाते कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस बना के रखें, तो पक्का प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है. तो ये बिल्कुल ध्यान रहे, आपको अरिथमेटिक के ऊपर तगड़ी मेहनत करनी है, ठीक है. अलग अलग तरीके की लैंग्वेज में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यू शुड बी रियली कंफर्टेबल टू मैनेज देम. एंड कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए. अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे नहीं हो, ठीक है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, आपको पहली बार अटेम्प्ट करने में भी डर लगेगा, तो ये नहीं होना चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट एल्जिब्रा, एल्जिब्रा विल बी वेरी यू कैन से बेसिक, बट ऑब्वियसली 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के फंडामेंटल्स इसमें यूज होंगे. ओके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस बनेंगे जो विच आर बेसिकली रूट्स को कहीं ना कहीं मिक्स करके दिया गया होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. स्पेशल इक्वेशंस जहाँ पे थोड़ा एक इनसे लीनियर इक्वेशन जो लेट्स से 3 वेरिएबल है पर आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं, आपको 3 वेरिएबल के इक्वेशन 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन से सॉल्व करना है विद अ सर्टेन कंडीशंस. दैट्स हाउ द स्पेशल इक्वेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लॉग्स, प्रोग्रेशंस, फंक्शंस, सेट थ्योरी, डिटर्मिनेंट्स, ये 11th 12th के कंसेप्ट्स आपसे पूछते हैं.
दोस्तों यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है। सीधे जो नोमेनक्लेचर यूज होता है वो नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, ठीक है। सेट थ्योरी का नोमेनक्लेचर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. Okay, similarly, if I talk about geometry, geometry is very fundamental and very basic, but very, you can say, it requires a lot of time. Okay, so fundamentals of triangles, circles, plane geometry के fundamentals, they need to be worked hard. ठीक है, यहाँ पे concepts important है और साथ साथ में application plays a very important role. ठीक है, काफ़ी तगड़े क्वेश्चंस आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, मेंशुरेशन, उनके क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे. मॉडर्न मैथ्स विल ऑल अबाउट बाइनोमियल, इनइक्वालिटीज, स्टैट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब अलग अलग एरियाज है दोस्तों, इसको अच्छे से तैयारी करिए. ओके, सो ये आपका सिलेबस, ठीक है. और आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, चलिए वो एक एक करके मैं बता दूं आपको. तो प्राइमरली फॉर द नंबर सिस्टम आई हैव कवर्ड ऑल टॉपिक्स on this YouTube channel, ठीक है. आई एम गोइंग टू पुट द लिंक, ठीक है, ऑफ ऑल दिस नंबर सिस्टम के कंसेप्ट के वीडियोस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अरिथमेटिक यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी बुक इन द मार्केट, ठीक है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. एनी अरिथमेटिक, एनी एप्टीट्यूड का बुक शुड बी सफिशिएंट फॉर यू. yes or no, that is really okay for arithmetic. What about algebra? For algebra I believe no book in the market will be sufficient. Okay, why? Because any book in IIM IPM or for that matter any other book is not covering all the topics, ठीक है. डिटर्मिनेंट्स, फंक्शन, सेट थ्योरी, लॉग्स एक साथ एक बुक में नहीं अवेलेबल है, एंड देयर बाय यू मस्ट रिलाई ऑन, यू कैन से, प्रो टैलेंट का कोर्स, ठीक है. ओके, प्रो टैलेंट के कोर्स के अंदर आपको ये पूरी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं. ज्योमेट्री यू कैन पॉसिबली टेक इट अप फ्रॉम लेट्स से IIM IPM का कोई बुक और कैट का कोई बुक, आप वहाँ से उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है. मॉडर्न मैथ्स, ठीक है, आई बिलीव बाइनोमियल, इनइक्वालिटीज और स्टेट्स शुड बी फोकस्ड ऑन थ्रू NCERT का बुक्स. ओके, ठीक है, और प्रो टैलेंट का मटेरियल. इन एनी केस प्रो टैलेंट का मटेरियल इज देयर फॉर ऑल टॉपिक्स. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, मिक्स चार्ट, ठीक है, ये बिल्कुल आपको आना चाहिए. यहाँ पे आपको मैथ के एप्लीकेशंस आने चाहिए, लाइक परसेंटेज ग्रोथ रेट, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, एवरेज कैसे करना है, इंडेक्स कैसे काम करता है, ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन आपका आना चाहिए, ठीक है. तो ये आपका कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको स्पीड में आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. हायर मैथ्स के क्वेश्चंस लाइक ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये भी फंडामेंटल होने चाहिए. जिन स्टूडेंट्स ने हायर मैथ्स नहीं लिया है, दैट इज 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया है, हायर मैथ्स नहीं लिया है, और उनको ये टॉपिक नहीं आते, तो आई बिलीव दे शुड नॉट रियली वरी टू मच अबाउट इट, ठीक है. इफ दे लीव दिस टॉपिक्स, आई बिलीव कट ऑफ आपने देखा होगा कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन, MCQ में करीबन 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है. सो दैट मीन्स कट ऑफ इज नॉट वेरी लार्ज. सो इफ यू विश टू लीव दिस क्वेश्चन, स्टिल you have a lot of questions available on which you can work and get this kind of cut off. ठीक है, is that comfortable? So no need to panic, no need to worry कि ऐसा questions आता है. दोस्तों IIM IPM का स्कोर कौन कौन लेता है, ठीक है. एक निर्मा करके एग्जाम इंस्टीट्यूट है जो इसके पास 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है. देन IIM रांची also said we are going to take the score for IP MAT, ठीक है. There is another college called TAPMI. TAPMI has a BBA program which is in Bangalore, ठीक है. They have a very super duper campus of TAPMI, ठीक है. They are also taking this score. So I believe slowly and slowly few more IIMs are going to bring a lot of content here, ठीक है. So a lot of them will be taking the score from IP MAT. So it's a good opportunity for you to work on it. As of now, you have IIM Indore,
Nirma, Ranchi, and Tapmi. Okay, total 4 colleges are taking the score, which means it requires us to put a lot of efforts. Yes or no? And it also requires me to tell you कि लोग दोस्तों ये you can say चैनल को ज्वाइन करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करिए, बिकॉज वी आर एडिंग लॉट ऑफ कंटेंट ऑन इट. उसके अलावा इंग्लिश के ऊपर अगर हम बात करें, सो दैट इज इंग्लिश प्रिपरेशन रिक्वायर्स दिस टॉपिक्स. वोकैब इंपॉर्टेंट है. ठीक है दोस्तों, वोकैब के अलावा आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपको साथ में ग्रामर चाहिए. यस और नो? ठीक है दोस्तों, वोकैब फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, या इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स. सो ये 2 एरिया हो गए जहां पे वोकैब आते हैं. देन यू हैव ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन ग्रामर, जहां पे क्वेश्चंस में कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यू हैव टू करेक्ट इट. ओके, क्वेश्चंस किसके आते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मॉडिफायर, कंपैरिजन, ठीक है, प्रोनाउंस, टेंसेस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. दे आर ग्रामर. ओके, देन you must apply your comprehension, which is purely based on logic. So reading comprehension, paragraph completion, and paragraph formation, ठीक है, are the important areas which are application of logic. जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक पैराग्राफ होता है, एक ही पैराग्राफ आता है, उसके ऊपर से 4 या 5 क्वेश्चंस है. क्वेश्चंस आर मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, व्हाट इज अ वीकनिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर और व्हाट इज स्ट्रेंथनिंग द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, व्हाट आर द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट, व्हाट आर द इन्फरेंस, ये तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. देन पैराग्राफ कंप्लीशन, एक पैराग्राफ दिया जाता है, लास्ट लाइन उसका मिसिंग है, यू हैव टू कंप्लीट द पैराग्राफ, ठीक है, और यू हैव टू गो फॉर यू कैन से आइडेंटिफाइंग which you can say line will not fit into the paragraph. That is what you have to identify in paragraph formation. Pure logic based questions. ठीक है, लॉजिकली आपके मन में पूरा आर्ग्यूमेंट बैठना चाहिए. पूरा आर्ग्यूमेंट बैठेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस इसको फिट करेगा, कौन सा सेंटेंस इसको फिट नहीं करेगा, ये आपको पता चलेगा. एंड देन यू हैव अ पैराग्राफ फॉर्मेशन. एक पैराग्राफ होगा, उसमें 4 या 5 सेंटेंस होंगे, उनको इन्होंने जंबल अप करके देके रखे होंगे, आपको उसको अनजंबल करना है एंड मेक अ लॉजिकल कोहेरेंट पैराग्राफ इज व्हाट यू हैव टू मेक. ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ आता है. बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे पाते हैं, ज्यादा स्कोर लेकर आते हैं प्राइमरली, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, सो दे हैव अ गुड कमांड ओवर इट. हाउएवर नॉट ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट वेरी गुड स्कोर. देयर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्रैक, यू कैन से, दिस एग्जाम. Primarily it is because they couldn't clear the cutoff of English. They have cleared cutoff of Kant, ठीक है, दोनों सेक्शन का, बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ इंग्लिश. दैट्स वेयर द चैलेंज इज. समझिए दोस्तों, ये एक बड़ा एरिया है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है. यहाँ पे प्रैक्टिस करना और कंसेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है. रैंडम प्रैक्टिस करने से काम नहीं होगा. यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैब, योर ग्रामर एंड लॉजिक. ये 3 चीजों का संगम इज गोइंग टू पुट यू इनटू राइट फ्रेमवर्क. ठीक है, सो व्हाट वुड बी द एक्शन प्लान. ठीक है दोस्तों, एक्शन प्लान फॉर कॉन्ट और एक्शन प्लान फॉर इंग्लिश इज वेरी सिंपल. ठीक है, प्राइमरली यू मस्ट गो थ्रू द फुल सिलेबस. स्पेंड अराउंड 20-25 days टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, देन यू मस्ट अपीयर फॉर सेक्शनल टेस्ट. सो प्राइमरली यू कैन से माई सजेशन इज, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस, post syllabus completion, appear for sectional test. Minimum I believe you need 20 sectional tests and then you appear for mocks. Okay, कितने mocks लिखने चाहिए? I believe some around 20 plus mocks should be written. ठीक है, अगर आप 20 से ज़्यादा मॉक लिख पाएंगे, 20 से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट, विच मीन्स 3 सेक्शन है, 20 into 3 60 सेक्शनल टेस्ट. एंड सिलेबस जब आप पढ़े तो हर चैप्टर के साथ, ठीक है, मिनिमम आप 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो जाकर आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है. ओके, आई बिलीव दैट इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस. फॉर इंग्लिश यू मस्ट स्पेंड वर्किंग ऑन योर वोकैब, लर्निंग सम अराउंड 2000 प्लस न्यू वर्ड्स. ग्रामर के वीडियो मैं ऑलरेडी इस साल के लिए बना चुका हूं, प्लीज उसको फॉलो करिए. ठीक है, बहुत तगड़े वीडियो मैंने बना के रखे, सो ग्रामर के वीडियो से आप पूरा कवर कर सकते हैं. ठीक है, यू नीड प्रैक्टिस मटेरियल. ठीक है, आई विल गिव यू ग्रामर का एक बुक for download purpose. You can very well go through that. Paragraph completion, paragraph formation, ठीक है, कि practice जरूरी है. ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है. So I believe you should, you can say, work with ProTalent, join ProTalent का course, and wherein we are
ऑन एन एवरेज ensuring weekly and monthly target to be achieved. ठीक है, always make sure that you plan your week ahead of a day. ओके सो आप जनरली आपका वीक चालू हो रहा है मंडे से, आप सैटरडे तक उसकी प्लान कर दीजिए और संडे को एक से उसको रिव्यू करिए, रिवाइज करिए, कंसेप्ट को याद करने की कोशिश करिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड एवरी डे प्लान इट वेल कि कल के दिन का प्लानिंग आज आप करके बैठे एंड ऑलवेज मेंटेन अ प्रोग्रेस डायरी. बिलीव मी, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर एबल टू मैनेज देयर टाइम इन अ प्रॉपर मैनर. ओनली देन दे आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. ठीक है, सो दोस्तों वी हैव एन IIM IPM का कोर्स अवेलेबल. यू कैन वेरी वेल ज्वाइन, यू कैन से दिस कोर्स बाय, यू कैन से डायरेक्टली विजिटिंग आवर वेबसाइट called protalentdigital.com. www.protalentdigital.com. वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीधा लिंक देके रखा हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. यस और नो? सो डोंट मिस आउट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. ठीक है, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड डोंट मिस आउट टू लाइक आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.